Hello students, how are you? Today we are taking the numericals based on the first order kinetics. Let's start. Before starting the numericals, first of all we will write the formula. Integrated rate equation for first order reaction, and the equation is Kt equals 2.303 logarithm of R0 by RT. Okay, and second formula is T half equals 0.693 by K. Okay, now we are writing the terms. First is K. K is a specific rate constant. T time. Next is R0, initial concentration of reactants, and RT is final concentration of reactant at T time. T टाइम पे उनका कंसंट्रेशन क्या होगा वो, तो ये है इसकी टर्म्स. टी हाफ इज हाफ लाइफ टाइम. थ्योरी हमने देख ली है. नेक्स्ट, वन बाय वन अब हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं. चलो, नंबर 1, calculate the half-life of the first order reaction from their rate constant which are given below. Means you are given the K value. First is 200 second inverse. Now we know that the formula T half for the first order reaction is 0.693 by K. That's why T half equals 0.693 by 200. तो कैलसी से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 0.693 by 200 ये है 0.003465 और उसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स. देन 1 सेकेंड इनवर्स, तो वो होगा इतने सेकेंड्स. नंबर 2, सेकेंड में के आपको दिया है 2 मिनट इनवर्स. अगेन टी हाफ इज आस्क्ड 0.693 बाय 2. यहां पे 200 था, यहां पे 2 आएगा तो 2 पॉइंट कट कर दो तो आंसर होगा 3465, but unit is minute. Similarly, third one, K is given to you for year inverse, so that T half equals 0.693 by 4. So by division here we will get 0.693 divided by 4. 0.17325 and itne year. Okay, so 4.13 is completed. Next, the half-life for the radioactive decay of C14 element. This is given to you 5730 years. An archaeological artifact containing wood has only 80% C14, मतलब 20% decay हो चुका है.
सो एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, मतलब उनकी आयु क्या होगी ये आपको पूछा है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टी हाफ इज गिवन टू यू। अब केटी इक्वल्स फॉर्मूला है, केटी इक्वल्स 2.303 log of r0 by rt. First of all, k will be 0.693 by t half, मतलब 0.693 by 5730, तो ये आंसर आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 5730। तो यहां पे आंसर है 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴, 1.21 इंटू 10⁻⁻⁴, इतने ईयर इनवर्स। तो ये आपका के आ गया। अब यहां पे आपको दिया है कि 80% C14 है, मतलब 80% इज द फाइनल कंसंट्रेशन। मतलब अगर इनिशियल 100 है, मतलब जो लिविंग ट्री है उसमें 100 है, तो अभी का है 80, तो मतलब दोनों आपको दे दिया है। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100 देन 80% है अभी, दैट मीन्स इट इज 80। सो नाउ all the terms are known except one, that is t, then make the subject to it 2.303 by k logarithm of r0 by rt. So by putting the values 2.303 by k 1.21 into 10⁻⁻⁴ logarithm of 100 by 80, so that t equals, चलो यहां पे अब आएगा 10⁻⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 10⁻+4, सो 2303 और 0 डिवाइडेड बाय 1.21 एंड देन लॉगरिथम ऑफ 10 माइनस लॉगरिथम ऑफ 8, तो 23030 अपॉन 1.21, लॉग 10 की वैल्यू स्टूडेंट्स वो 1 है और लॉग 8 है 0.9031, so that finally 23030 multiplied by 0.096 and 9 and divided by 1.21। चलो अब ये कैलसी से करते हैं, 23030 multiplied by 0.0969 divided by 1.21, so our answer is 1844.3 इतने years। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, k इज गिवन टू यू 60 सेकेंड इनवर्स। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू, आपको दिया है रिड्यूस, अगर बाय दिया होता तो मीनिंग डिफरेंट होगा, और यहां पे रिड्यूस टू दिस मच। अगर आपको जब भी पार्ट देते हैं तो at that time generally R0 is taken 1 molar and RT is 1/16. K is given to you and what is asked? How much time? Again T is asked. So students, T का formula integrated rate equation 2.303 divided by K logarithm of R0 by RT, so that T equals 2.303 by 60, logarithm of initial concentration is 1 and final concentration is 1/16, so that 2.303 multiplied by log of 16 divided by 60। तो यहां पे स्टूडेंट्स 2.303 और 16 का लॉग है 1.2041 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 60। तो यहां पे 2.303 multiplied by 1.2041 and divided by 60,
तो यहां पे आंसर आता है 0.0462, दिस मच सेकेंड. सो दिस इज अवर आंसर. चलो, अब ये क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक जगह पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और उसी टाइम पे SR-90 वहां पे वो रेडिएट हुआ. ओके, उसका हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इज गिवन टू यू 28.1 ईयर्स. अब उसी टाइम पे जब एक्सप्लोड हुआ उसी टाइम पे एक न्यूली बॉर्न बेबी में SR-90 एब्जॉर्ब हुआ. मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइक्रोग्राम. ओके, और फिर आपको ये पूछा है कैल्शियम की जगह पे ये एब्जॉर्ब हो गया, तो हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन, मतलब 10 साल बाद टी इज गिवन टू यू 10 ईयर्स. तो 10 साल बाद और 60 ईयर्स बाद दो क्वेश्चंस दिए. तो चलो, नंबर 1 टी इक्वल्स 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद कितना SR-90 वो बाकी बचेगा. और लिखा है इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली, मतलब बॉडी में SR-90 जब एब्जॉर्ब होता है तो उससे जब मेटाबॉलिज्म जब क्रिएट होता है तो उस टाइम पे SR-90 किसी भी तरह से लॉस्ट नहीं होगा. इट इज नॉट लॉस्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पूछा क्या है, आरटी आपको पूछा है. तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग द इक्वेशन KT इक्वल्स 2.303 log of R0 by RT. चलो, तो अब log of R0 माइनस RT, उसको एक साइड लिखते हैं, दूसरी साइड पे हम लिखेंगे KT बाय 2.303. अब K की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.693 बाय T हाफ, ऊपर T, और यहां पे आएगा 2.303, ये तो था ही, मतलब इंस्टेड ऑफ K वी हैव रिटन 0.693 बाय T हाफ. नेक्स्ट, log of R0, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1, तो log of 1 log of RT, RT इज आस्क्ड, और यहां पे आएगा 0.693 इंटू टाइम, हाउ मच टाइम, 10 years. T half is given to you 28.1 multiplied by 2.303. चलो, अब इसका आंसर पहले हम निकालते हैं. यहां पे log 1 0 होगा, माइनस log ऑफ RT, और यहां पे आएगा 0.693 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 28.1 डिवाइडेड बाय 2.303. तो यहां पे आएगा 0.1071. ओके, सो दैट logarithm of RT इक्वल्स माइनस 0.1071. तो यहां पे आएगा RT इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ 0.1071. तो इसका एंटीलॉग देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 बार 0.0939 आएगा. तो अब एंटीलॉग देख लो, 09 का 3 में 9, तो यहां पे आंसर आएगा 7.81 इंटू 10⁻⁻1, मीन्स हम लिख सकेंगे 0.781 माइक्रोग्राम. तो ये बचा 10 साल के बाद. अब स्टूडेंट्स, अगर आपको 60 इयर्स बाद फाइंड आउट करना है तो जस्ट यहां पे 60 लिख दो और फिर से ये कैलकुलेशन करो. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सेकंड नंबर है मैं आपको सेल्फ में दे रहा हूं कि अगर t इक्वल 60 इयर्स है तो उस टाइम पे RT क्या होगा. सिंपली आपको यहां पे 60 लिख देना है, ये कैलकुलेशन लिख देना है, नेगेटिव साइन और फिर उसका एंटीलॉग, यू विल गेट द आंसर. तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स इजी है. नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट
the time required for 99% is twice of the time required for the completion of 90%. तो ये आपको प्रूव करना है. ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहां पे t 99%. तो इसका मतलब हुआ R0 is 100 molar, then this RT will be 100 is initial और 99% complete हो रही है रिएक्शन. So that final concentration is 100 was initial, 99 is used. So it is 1 molar. So R0 is 100 and RT is 1. So that here we can easily calculate T 99%. उसका फॉर्मूला लिख देते हैं. तो उसका फॉर्मूला होगा 2.303 by K logarithm of 100 by 1. Similarly students, T 90% अगर हम लिखते हैं तो उसमें हम लिख पाएंगे R0 equals 100 molar and then we can write RT is initially is 100, उसमें से 90% यूज हो रहा है. तो ये होगा 10 molar. So here also we will get the another formula, logarithm of 100 by 10. Now students, we will take the ratio of T 99% is to T 90%. ओके, तो अब यहां पे 2.303 अपॉन K log of 100 by 1 और नीचे आएगा 2.303 by K log 10. चलो 2.30 की दोनों साइड कैंसल. log 100 मतलब logarithm of 10 raised to 2 और log 10 का मतलब 1. चलो माथे पे जो वो आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगा log 10 upon 1. log 10 is again 1, so finally we will get 2. Thus here we can write that T 99% equals 2 multiplied by T 90%. स्टूडेंट्स अब इस इंस्पायर होके कुछ चलो आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं मैं. T 19% is dash multiplied by T 10%. चलो ट्राई करो. Similarly T 99.9% equals dash into T 50%. चलो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ स्टूडेंट्स. इसी मेथड से आपको करना है. ओके, नेक्स्ट. A first order reaction takes 40 minutes for the 30% completion decomposition. तो T half आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 30% completion, तो उसके लिए आपको T दे दिया है 40 मिनट्स. 30% कंप्लीशन का हम मीनिंग कंक्लूजन क्या निकालेंगे? R0 इज 100, तो 100 में से 30% कंप्लीट हो गया, तो बाकी कितना बचा? 100 था, 30 गया, बचा कितना? 70. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स K फाइंड आउट कर दो. फॉर्मूला रहेगा 2.303 बाय T लॉगरिथम ऑफ R0 100 divided by RT 70. Okay, so 2.303 by T 40 minutes logarithm of 10 by 7. अब स्टूडेंट्स 10 by 7 आएगा तो यहां पे होगा log 10 minus log 7. 2.303 by 40 मल्टीप्लाई बाय log 10 is 1 और 7 का log होगा 0.8451.
Okay, so that K equals 2.303 into 0.1 में से ये सब्सट्रैक्ट करो तो 1549 डिवाइडेड बाय 40। चलो अब ये कैलकुलेशन करते हैं। 2.303 multiplied by 0.1549 डिवाइडेड बाय 40। तो आंसर के का आंसर आएगा 0.00892 और इतने मिनट इनवर्स। अब आपको टी हाफ पूछा है तो टी हाफ का फॉर्मूला होगा 0.693 बाय के। तो 0.693 डिवाइडेड बाय के इज 0.00892। तो यहां पे होगा 0.693 divided by 0.00892 and our answer is 77.69 minutes. Consider a certain reaction. A gives products. K is given to you students 2 into 10 raised to minus 2 second inverse. Calculate the concentration of A remaining means RT is asked after 100th second, t equals 100 second. If the initial concentration means R0 is also given to you 1 molar. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगेन हमने अभी जो SR90 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला KT इक्वल्स 2.303 logarithm of R0 by RT। चलो 2.303 को नीचे ले जाओ तो KT by 2.303 log of R0 minus log of RT। चलो log R0 initial concentration is 1 molar, final concentration is asked और यहां पे टर्म आएगी K 2 into 10 raised to minus 2 into T 100। तो चलो 10 raised to minus 2 और 100 कट डिवाइडेड बाय 2.303। तो यहां पे होगा स्टूडेंट्स log 1 is 0 minus log of RT that is asked equals 2 by 2.303। तो यहां पे होगा 0.8684 so that RT equals anti-log of minus 0.8684। ओके, तो anti-log ऑफ इसको बार में कन्वर्ट करो 1 बार 0.131 एंड देन 6 आएगा। चलो अब इसका एंटीलॉग देखते हैं। तो यहां पे आंसर आएगा 1.35 into 10 raised to minus 1 means 0.135 molar concentration. This is our answer. Okay students, so today's the last question is sucrose decomposes in acid solution into glucose and fructose according to the first order mechanism. T half is given to you 3 hours. That means K easily we can calculate 0.693 by 3, so it is 3 2s, 3 3s and 3 1s. This much R's inverse. पूछा क्या है आपको? What fraction of a sample of sucrose remains after 8 hours? मतलब जब भी फ्रैक्शन टाइम्स ऐसा वर्ड हो तो उस टाइम पे R0 हम जनरली लेते हैं 1 मोलर एंड विथ रिस्पेक्ट टू 8 यू आर आस्क्ड RT।
Okay students, next, so k is being calculated by us, RT we want to calculate, तो again first order mechanism का formula KT by 2.303, चलो मैंने पहले से साइड में ले लिया, लॉगरिथम ऑफ R0 अपॉन RT होगा K is 0.231, T हाउ मच टाइम आफ्टर 8 आवर्स आपको दे दिया है, देख लो, डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल्स लॉगरिथम ऑफ R01 माइनस लॉगरिथम ऑफ RT, तो log 1 is 0, so it cannot be written, and माइनस log of RT सिर्फ यहां पे ये बचेगा और इक्वल्स, चलो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम, तो 0.231 multiplied by 8 divided by 2.303, तो आंसर होगा 0.8024. Okay, so that RT equals antilog of minus 0.8024, बार में कन्वर्ट करो, 1 बार 0.1976, चलो एंटीलॉग देखते हैं अब, सो एंटीलॉग है 1.576 into 10⁻⁻1, so it is 0.1576, this much, तो इतना पार्ट आपका बचेगा 0.1576. ओके, चलो स्टूडेंट्स, तो एक लेवल मतलब जो इजी थे ना, इजी लेवल आज हमने कंप्लीट किया. नेक्स्ट लेक्चर में टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे एक्सरसाइज के और कुछ बाहर के. ओके स्टूडेंट्स, तो गुड बाय फॉर टुडे.